Very good morning, my dear children. I hope you people have understood what we have learnt yesterday, Hannah. In our previous topic, we have came across with the case study and we have started our journey of electoral politics. Now, children, we are going to start with the new section of with the new topic, and the topic name is why do we need the elections? Students, yesterday we in our previous slide we have came across with the case study of Haryana, and in that we have came up with the very important facts about the people's participation, then elections, then political parties. All these are the integral part of your democracy. As these are the integral part of the democracy, the elections do played a very important role in the democracy. So the question or the topic is in front of you is why do we need the elections? Children, just think about a country without any sort of elections. Just imagine it out. Can we say that the crowd can able or the people itself can able to rule the country? People, it means the crowd of the people able to rule the country? Say no. If all the people they can sit together every day and talk about the decisions, they talk about the problems, can the problems be solved? No. So it won't be possible for the large community or the large country like India to know each and everything about the you can say about the places, about the matters, about the decisions, about the grievances of the people, etc. बेटा पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, पॉसिबल नहीं है कि एक जो भीड़ है उसे हर इंडिविजुअल के एक्सपेक्टेशंस के बारे में, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जाने. सो मोस्ट डेमोक्रेसीज द पीपल रूल, yes, the people rule, but through their representatives. So democracy is also termed to be known as representative. But before that, I just want to say about the elections, because in our earlier videos also I have given this particular point that it is a mechanism. You can say it is a power or it is a mechanism by which the people can choose their representatives at regular interval of time. Regular interval of time to change them. Children, there is a very important term that is called as mechanism, and the important word is called as here the change. Change का मतलब होता है ये हमारा ऐसा political power है जिसके थ्रू, ऐसा mechanism है जिसके थ्रू हम लोग अपने ruling जो पार्टी है उसको री इलेक्ट भी कर सकते हैं, उसको दोबारा से हम चुनाव जिताकर उनको गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, या फिर हम उन्हें हटाकर दूसरे गवर्नमेंट या दूसरे लोगों को या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को चांस दे सकते हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट. तो ये जो पावर है बेटा ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्री में ही है, नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स में ऐसा नहीं दिया गया है. These powers cannot be given to the non-democratic regimes. So is there a democratic way of selecting the representatives without elections? एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, क्या ये डेमोक्रेटिक क्या और भी कोई तरीका है जिससे हम रिप्रेजेंटेटिव्स को बिना इलेक्शंस के चुन सकते हैं? हाँ, एक समय के लिए आप लोग विलेज एरिया में जाते होंगे, आपको पता है कि सरपंच या पंचों का चुनाव होता है ना, पहले के समय में भी. तो वो किसके बेस पे होता था? वो होता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, या अगर कोई शिक्षित है तो हम ये कहते हैं कि हाँ गांव में ये पढ़ा लिखा है तो चलो हम इनको अपने डिसीजन मेकर बनाएं, है ना. तो समटाइम्स एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल कैन बी यूटिलाइज्ड,
बट बेटा एक बड़ी कंट्री के लिए merely to decide on the basis of experience or knowledgeable, it won't be possible for the people to choose a correct person for the correct place or a correct position. इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसी गवर्नमेंट चुननी है जो कि हेल्दी हो एंड दे कैन थिंक, जो अकाउंटेबल हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो एंड हु थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि वाई द इलेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट। तो इलेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज this is only the mechanism through which the people can elect the representatives. Fine. Due to this elections only, the voters have many choices for electing the representatives. है ना, आप लोगों ने देखा होगा, अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी चुनावी क्षेत्र से 4 कैंडिडेट्स खड़े हैं तो वोटर्स अपनी चॉइस के हिसाब से पॉपुलर फेसेस को चुनते हैं। It is very very essential, it is very very necessary for by this elections to make the ruling party either to re-elect or to lose the elections, है ना। Example, Congress had ruled over the country from you can say for 70 years, but now the people wanted to change the ruler, और जो रूलर आया, जो रूलिंग पार्टी थी उसको उन्होंने हटा के अदर पार्टी को जो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंट काम कर सके उसको उन्होंने एज अ गवर्नमेंट बनाया, है ना। तो ये किसके थ्रू, किस मैकेनिज्म के थ्रू ये मैकेनिज्म कहलाया, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड इट एज इलेक्शंस। This is a mechanism through which the voters can choose the party whose policy will guide the government and law making, क्योंकि लोग चुनेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जो मेजॉरिटी पार्टी जब बनेगी, फॉर्म होगी, वो इलेक्शंस विन करेगा, और जब इलेक्शंस में जीतेगा तब वो पार्टी बनाई जाएगी गवर्नमेंट, है ना। और यही गवर्नमेंट पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स और लॉज बनाते हैं जो इफ़ेक्टिव होता है किसके लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। दस वंस द रिप्रेजेंटेटिव मेक गवर्नमेंट, they involve themselves into making the development programs for the people, or because the government is totally responsible for the welfare of its people, children. Now the question arises, कैसे हम इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बना सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक का मतलब हुआ कि that it should be the elections what makes an elections democratic? Children, इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। इट मीन्स दिस इन द कंट्री द पॉलिटिकल राइट्स और पॉलिटिकल इक्वलिटी शुड बी नीडेड, जैसे कि दैट एवरीवन whose age group is from 18 years till there is no any you can say the limit of the age, with irrespective to the caste or the gender or economic or you can say the educational. It means the illiterate, the literate, male, female, rich, poor, male, female, rich, poor, or you can say there should not be any sort of racial discriminations over there. It means everyone has a right to vote. So everyone should be able to choose, children. हर किसी को चुनने का अधिकार है ना बेटा।
तो अगर हम बात करें कि जो पार्टीज़ और कैंडिडेट्स हैं वो भी एक तरीके से इस इलेक्शंस के द्वारा वोटर्स को अपनी, अब कहते हैं ना कि अपनी आइडेंटिटीज़ प्रेजेंट करते हैं और वोटर्स अपनी चॉइस के द्वारा विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्शंस दे कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स जिसको वो चुनना चाहते हैं. Important is that elections it must be held at regular interval of time. ये नहीं कि अब जैसे नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स की अगर हम बात करें तो इलेक्शन जैसे नाम की चीज़ कुछ होती नहीं है. अगर इलेक्शंस हुआ भी, चाहे वो मोनार्कियल गवर्नमेंट में हो, आपने चेक किया, चाहे नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स में आपके डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें इलेक्शंस जैसा मैकेनिज़्म प्रेजेंट नहीं है. और यदि है भी तो उसमें एक फोर्सफुली, या हम कह सकते हैं डर्टी, बाय यूटिलाइजिंग द डर्टी ट्रिक्स द रूलर्स कैन एबल टू विन द इलेक्शंस. ठीक है ना. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि इलेक्शन शुड बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम्स में इट टोटली डिपेंड ऑन द रूलर टू, ये डिपेंड करता है ऑन द रूलर टू just whether when we have to have when we have to have the elections, do we have the elections, yes or no. So the candidates preferred by the people should be get elected. इसके द्वारा वही कैंडिडेट्स चुने जाते हैं जो कि लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इश्यूज़ है दैट इज़ दैट everyone should be able to choose. It means that everyone should have one vote, one value, that is one vote, every vote have equal value children, जिसको हम लोग एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं. If we are talking about the candidates, the election should be conducted in a free and fair manner where the people can choose as they really wish, they really want, है ना. अगर if the people wanted to have a candidate X, क्योंकि जो कैंडिडेट A है वो करप्टेड है, वो नहीं चाहते कि दोबारा कैंडिडेट A आए, लेकिन बेटा उन्हें ये भी नहीं पता कि कैंडिडेट X कैसा है, तो उस कंडीशन में फिर भी वो एटलीस्ट चांस देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्शन कि हम देखना चाहेंगे कि वो कैंडिडेट एक्स कैसा काम करे. और इन केस अगर कैंडिडेट एक्स कैंडिडेट ए से बहुत अच्छा काम करेगा तो डेफिनेटली इन द नेक्स्ट इलेक्शंस हम कह सकते हैं कि कैंडिडेट एक्स की चांसेस बढ़ जाएगी टू विन द इलेक्शंस. जैसे कि हमने केस स्टडी में पढ़ा कि कांग्रेस की सरकार से त्रस्त होके हरियाणा की जनता ने किसको चुना, चौधरी देवीलाल जी यानी कि लोकदल को. लेकिन उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया और उसी टेन्योर के बाद जब लोगों को कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन हुआ तो उन्होंने उसी वक्त रूलिंग गवर्नमेंट को क्या किया, मतलब जो नेक्स्ट इलेक्शन आया उसमें उन्होंने जो पॉपुलर गवर्नमेंट थी उसको हटा के उन्होंने, पॉपुलर गवर्नमेंट का मतलब जिसको जनता ने चुना उसको दोबारा से हटाकर कांग्रेस की गवर्नमेंट को फॉर्म किया. It means the election should be democratic. It is based on the democratic principles. एक most important topic जो आपके सामने आता है, can it is a good to have a political competitions, क्योंकि बेटा आप लोग देख रहे हैं in present scenario that number of the political parties are formed in India. अगर हम इंडिया का लें एग्जाम्पल, है ना. लेकिन यही इलेक्शंस जो हैं आप लोगों ने अपने स्कूल में भी देखा होगा, अपनी क्लास में भी, कि मॉनिटरशिप के लिए भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, है ना. एक बच्चा है जिसका नाम श्याम है और एक दूसरा बच्चा है जिसका नाम राम है. उन दोनों, श्याम पिछले 4 साल से पर्टिकुलर क्लास 8 का स्टूडेंट, क्लास 8 की क्लास से वो मॉनिटर बन रहा है. क्लास 9th में भी जब टीचर ने उन पूछा हु इज़ द एफिशिएंट तो बच्चों ने श्याम का ही नाम लिया.
फिर जब वो क्लास 10th में आया तब बच्चों ने श्याम का ही नाम लिया, लेकिन मैडम के दिमाग में आया वाई श्याम ओनली। तो उन्होंने एक कहा कि लेट्स वी हैव अ मॉनिटर, यू कैन से इलेक्शंस फॉर द मॉनिटरशिप ऑफ द क्लास 10th। तो वहाँ पे उन्होंने, मैम ने पूछा कि क्या श्याम के अगेंस्ट में कोई बच्चा कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है? तो राम ने कहा यस, आई वॉन्ट टू कंटेस्ट द इलेक्शन। तो राम ने अपने आइडियाज़, अपने पॉलिसीज़, अब वो क्या कर सकता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द क्लास, वो रखा, श्याम ने अपना रखा। बच्चों ने और टीचर ने उसको सुना। 40 स्टूडेंट्स की क्लास थी, 19 students have given vote to श्याम, एंड रेस्ट जो था वो किसको मिला? दैट इज़ फॉर राम। एंड राम जो थे वो बने क्या? एज अ इलेक्टेड, यू कैन से इलेक्टेड मॉनिटर ऑफ द क्लास। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन्स सही होना चाहिए या है। सो बेटा अगर हम बात करें दैट इट इज़ अ लाइफ वेयर the merits and demerits are known as the two faces of the same coin, तो हम कहेंगे कि yes पॉलिटिक्स में कंपटीशन होना चाहिए, हाँ या ना हाँ, दोनों में इसके मेरिट्स भी हैं बेटा और इसके डीमेरिट्स भी हैं, ठीक है। तो लेट्स वी टॉक ऑन सम ऑफ द इश्यूज दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स। बेटा इलेक्शंस के थ्रू हम लोग पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स करते हैं। ये कॉम्पिटिशन्स बहुत तरीके के फॉर्म्स में आते हैं। समटाइम्स ये कॉम्पिटिशन इतने ज़्यादा अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी प्लेड एन इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल यानी चुनावी क्षेत्र, इट टेक्स अ कॉम्पिटिशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स। तुमने देखा होगा कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम बी है तो उस बी में 4 पार्टीज़ अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेंगी। तो कंपटीशन किन के बीच में होगा? उन 4 कैंडिडेट्स के बीच में। इफ़ देयर इज़ नो कंपटीशन इलेक्शंस विल बिकम पॉइंटलेस। अगर कोई भी अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छे छवि वाला व्यक्ति अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी ए से खड़ा हो रहा है एक तरीके से एज अ कैंडिडेट, तो उस कंडीशन में बेटा सबको पता है ये बहुत पॉपुलर फेज़ है, तो अदर पार्टीज़ ने कहा नहीं हम इनके अगेंस्ट में किसी को नहीं खड़ा करेंगे क्योंकि ये बहुत साफ छवि वाले हैं। तो हुआ ये कि वहाँ पे इलेक्शंस का कोई भी महत्व, वहाँ पे वो इलेक्शंस महत्वहीन हो जाएगा क्योंकि कहीं ना कहीं जो इलेक्शंस है वो कंपटीशन, वो इलेक्टोरल और यू कैन से द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स को जन्म देता है, ठीक है। इट गिव बर्थ टू द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स। तो अगर हम ये बात करें कैन इट बी द गुड और कैन इट बी सो, बट वी हैव टू गो थ्रू विद मेनी डीमेरिट्स and many merits. तो let's we have some merits. बेटा ये पॉलिटिकल कंपटीशन प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को और लीडर्स को टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल, और इसी के थ्रू अगर वो जनता की आवाज़ को संसद में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में उठाते हैं और जनता की प्रॉब्लम्स या ग्रीवियंसेस को सॉल्व करते हैं, तो नेक्स्ट टाइम उनके जीतने की चांसेस इलेक्शंस की और बढ़ जाती हैं। तो ये एक पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स है। अगर ये पार्टी किसी कारण से लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरती है तो चांसेस हो सकती है कि वो इलेक्शंस लूज़ करें या मेजॉरिटी को वो लूज़ करें। ये फोर्स करता है पॉलिटिकल पार्टी को टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड टू सर्व द नेशन। बेटा यही पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए और बी दो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ए बहुत अच्छा काम कर रही है तो बी कहेगी कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं सरकार बनाऊंगी तो मैं इससे भी अच्छा काम करूंगी। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन के वजह से उनका अल्टीमेटली एम क्या होना चाहिए? टू सर्व द सोसाइटी एंड टू सर्व द नेशन। चिल्ड्रन ये बहुत सारे ऐसे और टर्म्स हैं जो कि एज वी से दैट
इट इज़ कॉल्ड टू बी द मेरिट्स ऑफ द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। लेकिन जैसे मैंने कहा, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आर द टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन। तो यहाँ पे पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन का डीमेरिट भी आएगा, और डीमेरिट का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स करप्शंस मसल पावर को जन्म देता है। कहीं ना कहीं ये डिसयूनिटी और फैक्शनलिज्म को क्रिएट करता है। फैक्शनलिज्म एंड डिसयूनिटी का मतलब कई बार अगर आपके ग्रुप में 5 लोग हैं तो 5 में से 2 पर्टिकुलर पार्टी के बारे में पॉजिटिव बोलेंगे, 3 उस पर्टिकुलर पार्टी के बारे में नेगेटिव बोलेंगे। तो वहाँ पे एक कहीं ना कहीं एक जो हमारी यूनिटी है, उस यूनिटी में वो यूनिटी कन्वर्ट हो जाती है इनटू द डिसयूनिटी, और कहीं ना कहीं वो सेग्रीगेशन आ जाता है। लोग समटाइम्स पॉलिटिक्स, उसकी खामियों के बारे में, उसके नेगेटिवनेस के बारे में चर्चा करते हैं। अक्सर ये हमारे डे टू डे लाइफ का पॉलिटिक्स जो है वो एक चर्चा बना हुआ है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स दे पुट एलिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर। कभी आपने चुनावी भाषण सुना होगा तो एक पार्टी दूसरे पार्टी को कहते हैं ना कि जितना ज़्यादा वो एलिगेशंस लगा सकती है वो लगाती है। इन स्पाइट ऑफ उनको ये चीज़ देखना है कि हम किस तरीके से सोसाइटी को और अच्छा और बेहतर बना सके, या डेवलपमेंट गोल्स बताने से ज़्यादा वो दूसरों पे एलिगेशंस लगाती हैं। समटाइम्स बेटा पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शंस जीतने के लिए वो डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करती हैं। कभी देखा होगा तुमने, आप लोगों ने चाहे हॉकी का मैच हो या फुटबॉल का मैच हो, या कहते हैं ना कि रेसेस होते हैं, है ना, तो दूसरा वाला ना जीते तो उसको क्या करते हैं, उसकी टांग खींच देते हैं, उसको धक्का दे देते हैं, उसको गिराने की कोशिश करते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है, डर्टी ट्रिक्स कैन बी यूज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज फॉर विनिंग द इलेक्शंस। समटाइम्स क्या होता है चिल्ड्रन कि फ्रूटफुल डिसीजंस नहीं आ पाते जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स। और जो कुछ अच्छे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग जो सोसाइटी में हैं, या कुछ ऐसे यंगस्टर्स जो वाकई में चाहते टू चेंज द, और दे वांटेड टू हैव सम रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी, सो दे वांटेड टू जॉइन द पॉलिटिक्स, बट अनफॉर्चुनेटली they do not want to enter into this arena because of unethical means adopted by the parties. Unethical means अनैतिकता। कई बार उनको इतनी ज़्यादा अनैतिकता दिखती है कि वो चाह कर भी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते। तो बेटा जिस तरह से, जैसे कि एक शॉपकीपर है वो अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, उसी तरीके से हम ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट के लिए है। लेकिन चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज़ की सबसे बड़ी ड्यूटी क्या होती है, टू प्रोवाइड अ गुड सर्विसेज टू सर्व द नेशन। सो समटाइम्स हम कह सकते हैं दैट द इलेक्शन प्लेड अ वेरी वेरी important role in the democracy. Now in the next class we are going to have some other topics like what is our system of elections, especially with the reference to India. Fine children, the chapter is a little bit lengthy, so we have to complete it. Till then children, watch the video carefully. Thank you.